والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آپ حضرت کا سورہ ہم جن با سورہ کل اللہ کی تلاوت فرما کے نسیم بانو مرحومہ بنت سید حسن مرحوم کی روح کو اشارہ برادران ایمانی محبان اہل بیت نبی، اس سے مجلس میں ذکر کر رہا تھا کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا. اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ صاحب اختیار پروردگار نے اس قانون کو بھیجا ہے تو کائنات کے سارے مذاہب سے اچھا یہ دین ہونا چاہیے. اب دین کو دیکھنے کے لیے اسی لیے اس قرآن میں اعلان ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ہمارے رسول کی سیرت نمونۂ عمل ہے. اب رسول کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیے، اس کے بعد میں اپنی کردار سازی کرتے چلے جائیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام اصل میں ہے کیا. مگر اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ سیرت رسول ہو. صورت رسول پہ عمل کرنے کے لیے قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے. اب سیرت رسول آپ دیکھیے کہ رسول اپنا جانشین کسے بنا رہے ہیں، آپ اسے مانیے. ورنہ اسی امت کے اندر اسی صحابیوں کے مجمع میں وہ بھی لوگ ہیں جو رسول کی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ انسان بیٹا ہے باپ کا، بھائی ہے بھائی کا، شوہر ہے زوجہ ہے شوہر کا، زندگی بھر کہنا نہ مانے. مگر جب مرنے کا وقت تو ہر آدمی تیار رہتا ہے. اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو آدمی تیار رہتا ہے کہ دیکھو مرنے والا کہہ کیا رہا ہے. اب وہ چاہے اس کے حق میں وصیت ہو یا اس کے خلاف گفتگو ہو، مگر ہر آدمی تیار رہتا ہے کہ دیکھو مرنے والا کہہ کیا رہا ہے. مگر جو غدیر کے دھوکہ کھائے ہوئے شرپسند صحابی تھے، میں اپنے جملوں کی ذمہ سے میں کر رہا ہوں کہ یہ غدیر کے دھوکہ کھائے ہوئے شرپسند صحابی رحمت للعالمین کے وفات کے وقت کتنا بتائیے عزیزان گرامی، شیطان کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ تو پہلے سے کافرین میں تھا. غلطی کیا تھی شیطان کی؟ ایک آدم ہی کا سجدہ تو نہیں کیا تھا، باقی کہہ کیا رہا تھا کہ پالنے والے تو مجھے ایک آدم کا سجدہ کرنے سے باز رکھ، میں تیری ایسی عبادت کروں گا نہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی عبادت کی ہوگی، نہ میرے بعد کوئی ایسی عبادت. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نہ میرے بعد کوئی ایسی عبادت کرے گا. اور نتیجہ میں آپ کے خدمت عرض کرتا ہوں کہ شیطان زمین پہ تھا، صف ملائکہ میں پہنچا تو اپنی عبادت کی بنیاد پر 2 رکعت نماز اس نے 4000 سال میں پڑھی، جس پہ ملک کی نگاہیں دھوکہ کھانے لگی کہ یہ انسان ہے یا اب وہ جو جنہ میں سے تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنے ہیں. اس نے اشتہار پیش کر دیا اور میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. عزیزان گرامی یہاں افضل اور مفضول کے چکر میں شیطان لعنت کا توق ڈال کے گلے میں واپس آ گیا. اچھا اس کی غلطی کیا ہے؟ آدم کو دیکھا اس نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آدم کو اس نے دیکھا؟ کیا دیکھا آدم کو؟ اللہ نے یہ تو کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہم پوری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنے کی جو آدم شیطان نے صرف اتنے تو کیا. اللہ نے کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اب وہ پورا قرآن ہے کہ یہ سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس.
फिर अल्लाह ने कहा माँ बना के इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया मेरे हुक्म के खिलाफ। मैंने अपना जवाब दे दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है, मिट्टी से पैदा किया है। और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो कहा पालने वाले मुझे आदम के सजदा से बाज रख, मैं तेरी ऐसी इबादत करूंगा कि न मुझसे पहले किसी ने की बहुत बड़ा दावा है करने के लिए, मामूली चीज़ नहीं बारगाह है परवरदिगार में शैतान खड़ा होकर दावा करे न मेरे बाप की इबादत करेगा। तब अल्लाह को क्या चाहिए था? अपनी इबादत ही तो करवानी है। वो कह रहा है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को नहीं खल्क किया मगर मेरी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं खल्क किया जिन्नातों को इंसानों को मगर वो कि मेरी इबादत करें। तो अब जब इबादत के लिए कह रहा था तो अल्लाह को खुश हो जाना चाहिए था कि मेरी इबादत करने के लिए तैयार है। तो मैं कहूँगा पालने वाले इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए जो सब करने के लिए तैयार है। एक आदम को सजदा नहीं किया, क्या करना? तो यही गावरन जवाब है कि नादान तुझे मालूम नहीं, तुम मेरे पैदा हुए बंदे हो। और यही चीज तो कहा कि मुझे तेरी पसंद की इबादत कबूल नहीं है, मुझे अपने पसंद की इबादत कबूल है। इसी वजह से अज़ीज़ान गिरामी किसी अमल को छोटा समझ के छोड़ना न चाहिए और किसी अमल को बड़ा समझना चाहिए। मालूम नहीं एक सुभान अल्लाह इंसान को जन्नत दिलवा सकती है, पूरी जिंदगी की इबादत है उसे जहन्नम में पहुंचा सकती है। गुरु पढ़े मोहम्मद जिंदगी हर एक औरत की, मगर एक औरत की जिंदगी पूरी गुनाह में गुजर गई। जो होता है अब शहरों में वो सब चीज़ें हैं भाई, पूरी जिंदगी इंसान औरत गुनाह करती रही और एक शख्स इबादत करता रहा। एक शख्स बस्ती छोड़ के चला गया, पहाड़ पे इबादत कर रहा है, बस्ती को छोड़ दिया, वो आबिद हो गया। फिर उसी शहर में एक औरत है जिसको अपनी जबान में वो लफ्ज़ नहीं है क्या कहूँ, अब वो लोगों का तस्कीन नफ्स कर रही, यूँ समझ लीजिए कि गुनाह में सरासर डूबी है। शैतान, अच्छा इसको क्या शैतान बहकाएगा, ये तो गलत काम कर ही रही है, मगर उधर वो आदमी इबादत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जाके शैतान ने उसी आबिद को बहका दिया। जाके वो वाकया है, वो बैठे हुए जाके बगल में मुसल्ला बिछाया दे, दनादन रुको सजदा और तशहुद सलाम और लंबे लंबे रुको और लंबे लंबे सजदे और बेहतरीन तरह से तिलावत। अब वो देख रहा है जब नमाज़ों में, ये तो हमसे बड़ा आबिद आ गया। अब हुआ मतलब आप सोचने वाली चीज़ है अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, मायूसी रखना कुफ्र है, मगर अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि साहिबाने किरदार के अमल को अल्लाह को ज़्यादा अल्लाह पसंद करता है। इसलिए और हमारे लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल है, मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि हम अली के चाहने वाले हैं, इसलिए सब कुछ तो हो सकता है, मगर अगर अली का चाहने वाला, क्योंकि बात हम तक नहीं रहेगी, जो गुनाहगारों के पैरोकार हैं वो गुनाह करें तो मामला इतना खराब होने वाला नहीं। जिसका बाप शराबी था, जिसका बाप जुआरी था, जिसका बाप अय्याश था, अगर उसका बेटा ये सारी हरकतें करे तो बात किसका कहेगा? क्या कहा जाएगा? भाई बेटा ही ऐसे आदमी का है। मगर जिसका बाप नमाजी हो, जिसका बाप रोजेदार हो, जिसका बाप आबिद हो, जिसका बाप जाहिद हो, उसका बेटा अगर गलत करने लगे तो कहना ऐसे बाप का बेटा है, कितना गुमराह हो गया। अब समझ लीजिए आम उम्मत अगर गलत कर रही है तो मामला चल जाएगा कि ये तो यजीद को पहले से मानते हैं जहाँ सब कुछ जायज था, मगर हम हुसैन और अली को मानने वाले अगर हम गुनाह करेंगे तो बात हम तक न रुकेगी, वहां तक पहुंच जाएगी। एक फूल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद आपने फरमाया कि तुम मेरे लिए जीनत का सबब बनना, रुसवाई का सबब न बनना। अब अपने अमल को हमको अपने देखे, किसी को कहने का मतलब नहीं कि फला ऐसे फला वैसे, हमको अपना अमल देखना पड़ेगा। किसी को बेनमाजी थोड़ी कह सकते भाई, नमाज का जिक्र होता है एक आम सी बात है। अब जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता वो अपने को सोचेगा, जो आदमी झूठ बोलता है वो अपने को सोचेगा, जो झूठ की बात होगी, जो आदमी गलत काम करता है, जो कोई गलत बात के लिए बयान किया जाएगा भाई, तो वो अपने को सोचेगा। किसी को कहने का मकसद नहीं, एक आम बात है। तो अज़ीज़ान गिरामी अब वो आदमी गया, तो अब इसमें नौज़ुबिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं कि मैं किसी आदमी कह रहा हूँ कि भैया तुम नमाज नहीं पढ़ते, मुझे हक ही क्या है कहने का? पहले अपने अमाल को देखना है। हाँ,
जो हो सकता है अमर बिल मारूफ तो किया ही जाना है, वरना अज़ीज़ान गिरामी रवायतें ये भी हैं कि अगर हक पैगाम न पहुंचाया गया तो गुनहगारों के साथ इबादत गुजार भी जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। इस वजह से कि हम सेल्फिश बने, हम अपनी इबादत के लिए तो बहुत रहे, मगर हमने अगले को नहीं देखा कि हम अगर इसको पढ़ना न पढ़ना, मानना न मानना ये उसका काम है, मगर कह के अपने दामन को बचा लेना हमारा काम है। अब और वरना नतीजा क्या है कि जैसे एक फरिश्ते को भेजा और 2 फरिश्ते चले और अल्लाह ने भेजा कि जाके फला बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल कर दो, उसको पलट दो। अब जब फरिश्ते आए, या अब इंसानों की बात भी नहीं है, बात आगे निकल गई फरिश्तों की, जैसा कोई गुनाह का तस्वुर भी नहीं है। अब वो फरिश्ते आए तो देखा कि एक आदमी जा रहे हैं सबके सन्नाटे में कि फला गाँव को बस्ती को मुअज्जब करना है, पलट देना है। अब देखा तो एक आदमी रात के अंधेरे में खड़ा हुआ और अल्लाह से मुनाजात कर रहा है। एक फरिश्ते ने रोक दिया, कहा देखो यार ये आदमी तो इस बस्ती का मुनाजात कर रहा है, हो सकता है अल्लाह इसकी वजह से इनको माफ कर दे। हुक्म अल्लाह का क्या है कि इस बस्ती को अजाब में मुब्तला कर दो, इसको पलट दो, खत्म कर दो इसको। अब अज़ीज़ान गिरामी वापस दूसरा फरिश्ता कह रहा है कि नहीं, हुक्म परवरदिगार आलम ये है कि बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल किया जाए। एक फरिश्ता कह रहा है कि नहीं ये मुनाजात कर रहा है, हो सकता है अल्लाह इनके ऊपर रहम कर दे। दोनों वापस हो गए। कहा पालने वाले मैं तो अजाब करने जा रहा था, इन्होंने रोक दिया। कहा पालने वाले वो आदमी तेरी बारगाह में मुनाजात कर रहा था, इसलिए मैंने इनको रोका है। कहा जाके उस आबिद समेत उस बस्ती को पलट दो, क्योंकि उसने अपनी तो फिक्र की है मगर अपनी बस्ती वालों की फिक्र नहीं की अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए हर इंसान जो भी है उसको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना चाहिए, वरना गुनहगारों के साथ उसकी इबादत भी कोई फायदा न पहुंचाएगी, वो भी वासिले जहन्नम कर दिया जाएगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तारीख है जिसको उठा के देख लीजिए कितना अल्लाह ने फिरौन की दुआएं कबूल नहीं की और जनाब मूसा को रोक दिया। कहा कि अगर फिरौन ने तुमसे इतनी बार कहा तुम नहीं पसीजे, अगर फिरौन कारून अगर एक बार मुझसे कह देता तो मैं उसकी खता माफ कर देता, मैं रहमान और रहीम परवरदिगार हूं। अब जब कारून जैसे कि खता माफ की जा सकती है तो अगर हम गुनहगार इंसान जो खुद मूसा के मुकाबले में खड़ा था, मूसा के दामने किरदार को दागदार करना चाह रहा था, हम खताकार इंसान अगर आजिज़ी से अपने परवरदिगार की बारगाह में अपनी गुनाहों को का एतराफ़ कर लें, उससे तौबा और मग़फ़िरत का तलब कर लें, तो परवरदिगार क्यों न माफ़ कर देगा। ये इब्राहिम को रोक दिया। बस जानेंगे बात को ख़त्म कर दूँ कि अब वो आबिद जब देख रहे हैं तो वो बैठा है, जो आबिद है वो बैठा है और शैतान वहीं पे इबादत कर रहा है। अब जब घूमा तो जब रुका किसी तरह तो इन्होंने पूछा भाई जो खुशू तुम्हारी इबादत में मुझे दिखाई दे रहा है मुझे अपने यहाँ नहीं मिलता है, अब होना क्या चाहिए था, आदमी क्या बताएगा। अब वो आया किस लिए है, इसीलिए तो कहा कि जाओ पहले कोई गुनाह करके आओ तब इबादत में लुत्फ मिलेगा तुमको, तब तो तुम तौबा मग़फ़िरत करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, तब तुमको मिलेगा मजा। तो कहा कि ये तो मैंने आज तक नहीं किया कोई गुनाह। उसने कहा फला जगह चले जाओ, औरत है और उसके यहाँ जाना और गुनाह करना और फिर आके देखना तुम्हारी इबादत, तब से जानने के ये शैतान ही कर सकता है और दूसरा कोई आदमी मशवरा दे भी नहीं सकता। अब वो गया, वो आदमी गया वहां पहाड़ से उतर के। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा आबिद पूरी बस्ती में मशहूर है। अब वो जब उतर के पहाड़ से चला तो अब जो आदमी देख रहा है कि ये भाई इतना मुकद्दस आदमी, देखिए किसके दरवाजे रुकता है, किसका नसीब इतना बुलंद है कि इतना मुकद्दस आदमी आज पहाड़ से बरसों के बाद उतरा है, किसके दरवाजे पे निकलेगा, किसकी किस्मत इतनी बुलंद है कि कौन के साथ कुछ किस्मत है कि किसके दरवाजे पे रुकेगा। वो उस बदनाम ज़माना औरत के दरवाजे पे रुका जाके। दिमाग में क्या शैतान ने क्या भरा है कि गुनाह करके आई। या अज़ीज़ान गिरामी जब उसने दरवाजा खटखटाया इस आबिद ने, वो निकली तो इसने इजहार किया कि ऐसी सी बात है। तो उसने लाहौर पढ़ा, कहा कि ये मशवरा देने वाला कोई इंसान नहीं है, ये मशवरा देने वाला आपको कोई शैतान हो सकता है। ये कौन कह रहा है, एक बदनामे ज़माना औरत। और इधर वो आबिद मुड़ता है, उधर मलाइकों मलकुल मौत का हुक्म होता है कि उसकी रूह कब्ज कर ली जाए।
जो जिंदगी भर गुनाह की दलदल में धंसी रही, और जब रूह कब्ज होती है तो वक्त नबी को हुक्म होता है कि अब जाके इसकी नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ। एक दुरूद पढ़ियो मोहम्मद वाले अब जब मामला समझ में आया कि इसने अपनी जिंदगी तो गुनाह में खत्म कर दी, मगर एक आबिद की जिंदगी भर की मेहनत को एक लम्हे में इसने बचा दिया, इसका सिला यह है कि उसकी रहमत जोश में है, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए अल्लाह ने। अब अल्लाह कब किसके गुनाह माफ कर दे, ये किसी के अख्तियार की बात नहीं है, मगर बाद गदीर आले मोहम्मद का दामन जब तक हाथ में न होगा तो मामला वहीं पे खत्म हो गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी बात और अब मसाइल। आदम का सजदे के लिए कहा, मैंने आपके खिदमत में कि इब्लीस ने कहा कि इसकी इबादत करूंगा, मगर अभी आदम के लिए क्या हुक्म है कि आदम, तारीख लिखती है कि आदम के पुतले को मिट्टी को गूंधा गया, फिर आदम के पुतले को बनाया गया, बना के फिर बरसों सुखाया गया, सुखाने के बाद अब इसमें रूह फूंकी। अभी आदम को हुक्म हो पहले हो चुका है कि इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं रूए जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। सबको मालूम है, फरिश्तों से मुकालमा हो चुका है अल्लाह का, और कि तू कैसे को बनाएगा कि जो कुछ तो खून बर्पा करे। अल्लाह ने कहा इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। भाई फरिश्ते खामोश हो गए कि भाई बेहतर है, अल्लाह से बेहतर मैं जान नहीं सकता हूँ, अल्लाह की जो मसलहत होगी जिसको बनाना चाहे बना दे। अब उसके बाद में अब इनको जब अभी इब्लीस शैतान मलून ने आदम की खिलाफत तो देखी नहीं, ना आदम की नबूवत देखी है, ना आदम की इबादत देखी है, ना आदम का ज़ुहद देखा है, ना आदम का तकवा देखा है, ना आदम को का इल्म देखा है, कुछ देखा नहीं। अभी तो जिस उनके जसद खाकी में रूह डाली गई है, अभी आके कुछ कारगुजारी तो आदम की देखी नहीं कि आदम ने क्या किया, कैसे अल्लाह की इबादत की। एक हुक्म परवरदिगार पे अमल न करने की वजह से जब तुराब का इनकार कर दे तो वो इब्लीस बनता है, और जो गदीर के मैदान में रसूल के दोनों हाथों पे अबू तुराब को देख के इनकार करके उसके लिए कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शैतान ने आदम के जसद खाकी का इनकार कर दिया तो जिंदगी कयामत तक के लिए इला यौमिल क़यामा लानत का तोक डाल दिया गया। और जिसने भरी दोपहर में रसूल के हाथ पे अबू तुराब को खलीफा बनते देखा हो, वो अगर उनका इनकार कर दिया तो जिसने अली को काबे से लेके और गदीर तक की सारी का तारीख उठा के देखिए, जब रसूल के इतने कमालात देखे हों उसके बाद इनकार कर रहा है तो कितने बड़ा। फिर ये भी एतराफ कर रहा हो कि लौला अली का फलाए, जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले चाहिए ग्रामी। तो नतीजा यही है कि जिसने सबीला हिदायत का इनकार किया वो मोमिन नहीं रह सकता, वो काफिर हो जाएगा अज़ीज़ान गिरामी। और अज़ीज़ान गिरामी दूसरी चीज़ ये है कि जाते जाते मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था, रहमतुल लिल आलमीन ने लश्कर उसामा को तैयार किया और ऐलान कर दिया कि फला 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 सब नाम बनाम लेके कि तुम सब लोग उसामा बिन ज़ैद के लश्कर में चले जाओ। और जब जाने से लोग कतराने लगे कुछ लोग, तो कहा खुदा की लानत हो उस पर जो जैसे उसामा से जाने से इनकार करे या तकल्लुफ करे, देरी करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो रसूल मरते वक्त लानत का तौक गले में डाल गए हैं, वो लानत का तौक तारीख का कोई मुहर्रिफ उनकी गर्दन से क़यामत तक उतार न पाएगा। और उस आदमी ने कहा कि यही काफिरों की साजिश कि रसूल हिज़यान बक रहे हैं। रसूल ने भी लगे हाथ फैसला कर दिया कि कुम निकल जाओ मेरे पास से, चले जाओ उठ के यहाँ से मेरी बारगाह। अज़ीज़ान गिरामी, जिसको बुला के रसूल ने मरते वक्त अपने पास बिठाया हो उसको दिल में बिठाना पड़ेगा, और जिसको अपने बल से उठा के भगाया है उसे दिल से नजरों से गिराना पड़ेगा, तभी राह हक पे इंसान चल सकता है और राह सवाब तक पहुंच सकता है। वरना अगर जिसको रसूल ने भगा दिया है, अगर हम उसकी मोहब्बत रखेंगे तो नतीजा दोनों बातें एक जगह नहीं हो पाएगी। जालिम भी रज़ी अल्लाह हो जाए और मजलूम भी रज़ी अल्लाह हो जाए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जालिम को जालिम कहना पड़ेगा, मजलूम को मजलूम कहना पड़ेगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह थी कि जो 11 हिजरी रसूल के रहलत के वक्त जो मामला शुरू हुआ था, नतीजा ये हुआ
कि जब यजीद तख्त हुकूमत पे बैठा तो उसने पहला खत्म हमने अपने खत्म दर्ज किया तो मदीने लिखा, और जब मजलूम करबला घर में आए और आने के बाद फिर मेरा मौला रोज़े रसूल की तरफ रवाना हुआ और जाके पहला कि तावीज़ कब्र से हुसैन लिपट गए। तारीख निकला ऐसा बिलक के हुसैन रोए जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के रोता है, हुसैन रोते रहे और रोने के बाद कह रहे नाना फरियाद है, आपने मुझे उम्मत के दरमियान छोड़ा था मगर उम्मत ने मेरा कोई लिहाज न किया, उम्मत ने मेरी कोई तकरीब और ताज़ीम न की। ऐ नाना जी नहीं चाहता था कि आपकी मज़ार को छोड़ो मगर उम्मत ने मजबूर कर दिया, नाना अपने आपका नवासा मदीना छोड़ने पे मजबूर है। हाँ नादारो उस वक्त रात में हुसैन वही मुनाजात करते हुए नमाज से फारिग होते, सुबह वापस आ गए उधर से। वलीद ने जो भी हुआ था वो लिख के यजीद को भेज दिया। यजीद का दूसरा खत आ गया कि अब इस खत के जवाब में हुसैन का सर भेज दिया जाए। वलीद ने यह खत मजलूम करबला के खिदमत में भेज दिया, काफर रसूल मैं ऐसी जसारत नहीं कर सकता मगर यजीद आपका खून बहाने का दरपे है, आप होशियार हो जाइए। मेरे मौला ने वही फैसला किया, बचपन का वादा याद आ गया कि जो नाना से वादा किया था उसके वफा करने का वक्त करीब आ गया। हाँ दादारो, अब जो इमाम घर में आने के बाद कह रहे हैं बीवियों को कि फला तुम तैयार हो जाओ, रवा तुम तैयार हो जाओ, मेरे अल्लाह तुम तैयार हो जाओ, ऐ माँ की कली सिद्धा तुम तैयार हो जाओ। ज़ैनब का नाम ने लिया, ज़ैनब तरफ के आगे बढ़ी भैया। अरे आप जानते हैं कि ज़ैनब आपके बगैर एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं रह सकती, क्या इस सफर में जाने वालों में ज़ैनब का नाम नहीं है? कहा मेरी बहन ज़ैनब तुम्हारा नाम तो सरे फेरिस्त है मगर तुम अब्दुल्ला इब्न जाफर की मनकू हो, जब तक अब्दुल्ला इब्न जाफर इजाजत न देंगे तब तक तुम मेरे साथ सफर में नहीं जा सकती। जनाब सानिया ज़हरा ने इतना सुना तो वो घर से बाहर निकली, अपने घर में आई, देखा अब्दुल्ला उस वक्त कुछ बीमार से लेटे हुए थे। जना अली की बेटी अब्दुल्ला के पास थी खड़ी हुई, अपने सर को झुकाया, करीब था कि अब्दुल्ला के पैरों पे अपना सर रख दे। अब्दुल्ला तड़प के उठ के बैठ गए। कहा अली की बेटी ये क्या कर रही है आप? कहा कि अब्दुल्ला तुम जानते हो कि मेरा भैया हुसैन सफर अख्तियार कर रहा है। ऐ अब्दुल्ला तुम जानते हो अगर हुसैन के साथ मैं न गई, इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर हुसैन मेरी मैयत निकलेगी, मैं हुसैन के बगैर एक लम्हे जिंदा नहीं रह सकती। ऐ अब्दुल्ला तुम इल्तिमास करती हो, अब्दुल्ला तुम मुझे मेरे भाई के साथ जाने की इजाजत दो। अब्दुल्ला बैठ गए, कायरी की बेटी तरह बैठ जाओ, बैठ गई। जनाब ज़हरा कहा जब मैंने रिश्ता दिया था अपने मौला आका को आपके साथ अपना, तो मेरा मौला ने पहली शर्त तुम्हें यही रखी थी कि अब्दुल्ला